Hello everyone, my name is Venkat Sharma. Today we will be discussing chapter 2 of class 10th NCRT. So before starting this topic, I want to thank you all for giving us immense positive response towards our class 9th NCRT series and towards the first chapter of class 10th series. So this motivates us to work even harder and provide you a more precise knowledge that we possess. So let's discuss chapter 2, that is acids, bases and salts. So I think you must have read about this topic in your classes of class 6th, 7th, 8th maybe. So you were taught that acids are substances which are sour in taste, okay, and bases are bitter in taste. They are also soapy in touch. So this was something that you were taught in your initial classes. Okay. So now we'll be discussing extended knowledge of that part. So let's move forward towards our chapter. Okay, so I will divide this chapter into three parts. First is acids, second is bases, and third are salts. So what are acids generally? This is salts. Okay. So see, now you have to remember this definition, which I'm going to explain you. Acids are something that which when dissolved in water, जब इसको आप पानी में dissolve करोगे, तो it would release H positive ions. Okay, remember this thing because I'm going to use this concept later on in this chapter. Bases are those substances which when dissolved in water, they releases OH negative ions. Okay, remember this. We'll be discussing about salts later on. Basically, salts are mixture of acids and bases. They are released when acids and bases react with each other. Okay. So remember this fact: acid releases H positive ions and bases releases OH negative ions when they are dissolved in water. Basically, H is hydrogen. H hydrogen होता है. OH negative, OH का मतलब होता है hydroxide. Okay, तो bases forms hydroxides and acid forms hydrates. Okay, तो देखिए आप एक बात समझिए. अगर मैं बोलता हूँ कि विराट कोहली प्लेज क्रिकेट, ओके, विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, ओके, इफ ही प्लेज क्रिकेट, sorry, he scores a century, so that means he is a good cricketer. I mean, for that day you could suppose that this thing, he is a good cricketer. And if one day he scores a duck or zero, then you might suppose that he is not that good cricketer. तो सेम यहाँ पे भी वही केस है. अगर H पॉजिटिव आयंस ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, हायर द H पॉजिटिव आयंस, हायर वुड बी द एसिडिक कैरेक्टर. यहाँ पे भी सेम वही केस है. हायर वुड बी द OH नेगेटिव आयंस, हायर वुड बी द बेसिक कैरेक्टर. मतलब अगर मान लीजिए आप 100 ml पानी लेते हो, ठीक है, आपने 100 ml पानी लिया और दो एसिड्स लिए आपने. एक मान लिया एसिड आपका ए था, एक बी था. अगर ए एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयंस ज्यादा रिलीज हो रहे हैं बी से, दैट मीन्स ए एसिड इज मोर एसिडिक देन बी एसिड. सेम would be the case in the case of bases. Okay, let's move forward. So next topic is indicators. What are indicators? So indicators, जैसे आपको पता है कि इंडिकेटर क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि वो सब्सटेंस है क्या. तो सेम इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं. हमने लास्ट छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि इंडिकेटर्स जनरली उनका काम होता है आपको ये बताना कि आपका जो मटेरियल है, मीडियम है, दैट इज एसिडिक और बेसिक. So we have a acid here and a base here. Okay. So suppose that we have taken an indicator which you might be familiar with. The indicator is litmus. लिटमस के बारे में आपने सबने सुना होगा. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्लास 9th की एनसीईआरटी में, कि इट बिलोंग्स टू Thalaphata family and it is extracted from lichen. Okay, remember this. It is extracted from lichen and it belongs to Thalaphata group of
family of plant kingdom. So litmus basically हम क्या करते हैं, लिटमस को स्ट्रिप्स में बाय करते हैं। अब वो स्ट्रिप दो कलर की होती हैं, एक होती है रेड कलर की, एक होती है ब्लू कलर की, ठीक है। तो होता क्या है, होता ये कि अगर आप एसिड के ऊपर सॉरी एसिड को अगर ब्लू लिटमस के ऊपर डालोगे तो इट वो टर्न इनटू रेड, ओके। एंड इफ यू पुट बेसिक मटेरियल ऑन रेड strip then it would turn into blue, ओके। तो देखो आपको याद कैसे रखना है, आपको याद रखना है ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है बी, ठीक है, ए के बाद बी आता है, और ये तीन चीजें देखो आपको याद रखनी है, ए बी आर, बी आर बी, ठीक है। एसिड या तो ब्लू से रेड होगा या रेड से ब्लू, बेसिक ब्लू से रेड या रेड से ब्लू, ठीक है। तो एसिड अपना क्या होता है, एसिड ब्लू से रेड होता है, ठीक है, ए से बी, बी से आर, ठीक है। और बेस के केस में क्या है, आप लोगों ने B2 भी सुना होगा ना, इसको BRB कर दो, ठीक है। यहां से आपको याद रखना है, दैट इज दिस इज सम काइंड ऑफ न्यूमरिक्स दैट आई हैव रिकॉग्नाइज्ड फॉर माई सेल्फ एंड यू कुड ऑल्सो लर्न दिस फॉर योर सेल्फ, ठीक है। ए से बी, बी से आर, अगर एक ब्लू से रेड हो रहा है तो दूसरा रेड से ब्लू होगा पक्का, ठीक है। Some of you might ask this question that what if we put acid on red litmus paper, तो अगर हम एसिड को रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो बिसाइड दिस वी हैव सम नेचुरल इंडिकेटर्स एज वेल लाइक टर्मरिक, ठीक है। अगर आप एसिड के ऊपर टर्मरिक डालोगे तो इट टर्न्स इनटू लिटिल पिंकिश इन कलर, ठीक है। अब देखिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल, ठीक है। देखिए आपको मैं जो चीजें समझाने वाला हूँ वो आपको अच्छे समझनी है। देखिए आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा होगा पहले, ठीक है, हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, हम सब ने पढ़ा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बोलता है, इफ एसिड्स आर रिएक्टेड विद बेसिस दे गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, सबने सुना होगा ये तो, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है कि एसिड का और बेस का इफेक्ट नलिफाई किया जाता है, नलिफाई मतलब जीरो किया जाता है। इफ एसिड इफेक्ट ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर बेसिक कंटेंट मिलाते हैं ताकि एसिड का इफेक्ट बिल्कुल नलिफाई हो जाए, बेस ज्यादा है तो एसिड मिलाते हैं ताकि उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाए। जब वो रिएक्ट करते हैं आपस में तो दे प्रोड्यूस सॉल्ट विद अलॉन्ग विद वाटर, ओके। तो सेम वुड बी द केस हियर, ठीक है। अब आपको देखो याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जितने भी आपके मेटल्स होते हैं ना, जितने भी आपके मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल दो कैटेगरी बना देता हूं पहले मैं। ये आपके जितनी मेटल है ना सारे हैं बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। क्यों है ये भी बताऊं आपको मैं, ये आपके सारे बेसिक ऑक्साइड है, ये चीज याद रखना, ठीक है। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ना आपके, जितने भी नॉन मेटल्स हैं दे ऑल आर एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। तो अगर हम रिएक्ट कराते हैं किसका, मेटल का और एसिड का, ठीक है, तो एसिड एज आई टोल्ड यू दैट दे आर बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, दे हैव बेसिक ऑक्साइड का मतलब नॉट प्रॉपर्ली बेसिस, दे आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ बेस एंड ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन से कुछ रिएक्ट करती है इट फॉर्म ऑक्साइड्स, ठीक है। जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है तो इट फॉर्म्स हाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बन से रिएक्ट करती है तो इट फॉर्म्स कार्बोनेट्स, ओके। तो मैंने बताया आपको कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। अब देखिए एसिड तो हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। बेस की जगह हमने लिया मेटल, मेटल क्या होता है हमारा बेसिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना आप, बेसिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया बेस और बेसिक ऑक्साइड में क्या फर्क है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ भी सॉल्ट प्लस वाटर ही बनना था, पर यहाँ पे वाटर ना बन के हाइड्रोजन गैस बनता है। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि एक ऑक्सीजन इसके पास पहले से था, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन इसके पास नहीं होता तो यहाँ पे जाके ये इसको ऑक्सीडाइज करता और यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन होती, ठीक है। पर इसके पास पहले से ऑक्सीजन था यहाँ पे, तो ऑक्सीजन एक होने की वजह से वाटर का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा, H2O, ठीक है। यहाँ ये ऑक्सीजन पहले से था इसके पास, अगर नहीं होता तो एसिड्स क्या करते हैं जनरली
वाटर सॉरी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होती है, H2O की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बट पहले से उसके पास सॉरी ऑक्सीजन था पहले से, तो ये यहाँ पे सिर्फ H2 फॉर्म करेगा और O नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। अगर बेसिक ऑक्साइड है पहले से, ठीक है, ऑक्साइड गैस होती है, यहाँ गैस की फॉर्म होगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। और एसिड प्लस बेस होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब सेम केस होता है जब आपका नॉन मेटल होगा। ये कंसेप्ट आपको याद सारे याद रखने हैं, ठीक है। कंसेप्ट अगर आपको याद है तो देन यू कैन सॉल्व एनी इक्वेशन, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो देर आर मोर देन लैक्स मिलियंस ऑफ इक्वेशन दैट यू हैव टू क्रैम, बट स्टिल देर आर चांसेस दैट आप एग्जाम में उसको गलत करके आ जाओ, ओके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, क्रैम नहीं करना कोई चीज, ठीक है। अब देखिए सेम वही फॉर्मूला हमारा, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। इस केस में मैं बेस ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने बेस लिया, बेस के साथ मैंने क्या लिया, मैंने बेस के साथ ले लिया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड याद रखना, जब ऑक्साइड्स होती हैं गैसेस फॉर्म में होती हैं, ठीक है। जब ये ऑक्साइड्स रिएक्ट करेंगी तो वहां पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी, ठीक है। गैस गिव्स गैस, ठीक है। बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स मैंने आपको बताया था अभी क्या होती हैं, एसिडिक ऑक्साइड होती हैं। तो जब बेस प्लस एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। पर यहाँ पे वाटर ना बन के हाइड्रोजन गैस बनेगी, रीजन बिहाइंड इसके पास ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट था, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, एसिड के साथ जब भी मेटल को आप रिएक्ट कराते हो, मेटेलिक ऑक्साइड को, तो सॉरी मेटल को, तो बेसिक ऑक्साइड की तरह वर्क करता है, ठीक है। और जब भी आप नॉन मेटल को रिएक्ट कराते हो बेस के साथ तो वो वर्क करता है एसिडिक ऑक्साइड की तरह, ठीक है। तो वो फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट। सी, अब मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है, इनका जब रिएक्शन कराओगे एसिड के साथ तब क्या फॉर्म होगा, ये पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या होता है, देखो हाइड्रोजन H से होता है, कार्बोनेट याद रखिएगा CO3 होता है, ठीक है। तो कार्बोनेट बोलता है तो CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलता है तो HCO3, ठीक है। और आगे बोल रहा है मेटल है तो आगे मेटल लगा दो कोई भी, ठीक है। जैसे आपको यहाँ इन्होंने Na दे रखा है, ठीक है, हम Mg भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये बोलता है कि तब क्या होगा जब हम एसिड का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ठीक है। अब देखिए स्लोली स्लोली ब्रेक करते हैं इसको, ठीक है। दिस इज अवर एसिड, ठीक है। ये साथ में क्या है, मेटल, और मेटल की कार्बोनेट है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मेटल्स जो होंगे ना, ये जो खाली Na है ये किसकी तरह रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा बेसिक ऑक्साइड की तरह, ठीक है। ये बेसिक ऑक्साइड की तरह फॉर्म करेगा तो सॉल्ट का बनना पक्का है, ठीक है। सॉल्ट देखो जनरली क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आपके एसिड्स रिलीज करते हैं H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, एंड बेसिस रिलीज करते हैं OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। सो देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज देयर एंड अ नेगेटिव चार्ज देयर। तो जब भी सॉल्ट फॉर्म होता है ना उसके पास पॉजिटिव प्लस नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। तो ये पॉजिटिव प्लस नेगेटिव चार्ज से जो बॉन्ड्स बनती है ना उन्हें कहते हैं आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, ठीक है। तो जो सॉल्ट्स होती हैं वो इसी बॉन्ड से बाइंडेड होती हैं। तो देखिए ये जो NaCl फॉर्म होगा ना यहाँ पे, दिस इज अ सॉल्ट जिसमें Na क्या आपका, ये पॉजिटिव है और Cl क्या आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड फॉर्म हुई यहाँ पे और इनको दोनों को होल्ड किया हुआ है स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्सेस ने, ठीक है। उसके साथ क्या बना आपका, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो आप कहोगे कि सर यहाँ पे आपके पास कार्बोनेट था, ठीक है, और यहाँ मेटल था, आपने बोला मेटल आपका बेसिक ऑक्साइड की तरह वर्क करता है, तो बाय वे गेटिंग वाटर देयर, ठीक है। तो देखिए ब्रेक करते हैं धीरे धीरे, CO3 था, O3 का मतलब क्या है, 3 बार हुआ है, O प्लस O प्लस O, ठीक है। तो क्या होता है वहां जाके हाइड्रोजन गैस ही बनती है, ठीक है। जब भी आप जो आपका ये मेटल था, मेटल क्या देगा आपको, मेटल देगा आपको सॉल्ट, ये रहा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो उसने दे दिया आपको हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन गैस दे दी। अब देखिए होता क्या है ना, जैसे कि आप मार्केट जा रहे हो, ठीक है, एंड मार्केट में बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट यू नो इफ देयर इज अ पार्ट वेर इज समथिंग दैट यू लाइक द मोस्ट,
सपोज फॉर ईटरी, ठीक है, आपको खाने में कोई चीज़ बहुत पसंद है और मार्केट में स्पॉट मिलती है, तो दिस इज मोस्ट लाइकली सर्टेन टू हैपन दैट यू विल गो इन दैट पार्ट ऑफ मार्केट फॉर श्योर, ठीक है, बहुत मतलब सर्टेनिटी ज़्यादा है इस चीज़ की। अगर आप अपनी फैमिली से जा रहे हो, फ्रेंड के जा रहे हो, तो आप उस पार्ट में पक्का जाओगे, ताकि कैसे ना कैसे करके आप वो चीज़ को मतलब कंज्यूम करके आओ, ठीक है। तो होता यहाँ पे भी ऐसा ही है कि H2O क्या है, जब भी हाइड्रोजन अकेला होता है ना, उसको ऑक्सीजन जब भी मिलता है, मतलब दिखता है ना आसपास, तो उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग अटेनिंग पावर होती है। अटेनिंग पावर मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिंग पावर है कि ऑक्सीजन को वो अपने पास खींचे और कैसे भी करके उसका बॉन्ड फॉर्म करे, ठीक है। इस फॉर्म में ये अपने आप को क्या बनाता है, स्टेबल बनाता है H2O की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ 3 ऑक्सीजन पड़े हुए थे, ठीक है। तो देखो 2 ऑक्सीजन से तो CO2 बन गई, ठीक है। क्यों बनी, बनी इसीलिए, CO3 इसलिए नहीं बनी क्योंकि CO3 इज लेस स्टेबल एंड CO2 इज मोर स्टेबल, ठीक है। ये आपको 4th चैप्टर में पता लगेगा व्हाई CO2 इज मोर स्टेबल एंड CO3 इज लेस स्टेबल, ठीक है। स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे हम, कैसे स्टेबिलिटी होती है, बट एज ऑफ नाउ आप देखिए CO2 ज्यादा स्टेबल होती है, तो यहाँ से बन गई CO2 हमारे पास, ठीक है। बचा एक ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन या तो अकेले सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन मोनोटॉमिक स्टेज में बहुत कम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जनरली उसको कोई भी दूसरा एलिमेंट मिल जाए तो उसका बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, ठीक है। और इसका पहला प्यार हाइड्रोजन ही है, ठीक है। तो यू कुड से दैट ही इज मोर लीन टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन जैसे दिखा इसको, तो कूद पड़ा उसके पास, ठीक है, एंड इट फॉर्म वाटर, ठीक है। तो धीरे धीरे ब्रेक किया हमने, देखो समझ गया, CO3 था, 3 में से 2 ऑक्सीजन CO2 बना गए, 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस जो किसकी वजह से रिलीज हुई थी, बेसिक ऑक्साइड की वजह से। बेसिक ऑक्साइड रिलीज कराती है हाइड्रोजन गैस, तो वो 1 ऑक्सीजन जो बचा था वो हाइड्रोजन गैस के पास चला गया और सॉल्ट की फॉर्मेशन हो गई। तो दिस इज हाउ यू डील विद कार्बोनेट्स, ठीक है। आगे चलते हैं। Let's move forward. So this is, I have explained you earlier as well कि अगर आप पानी के अंदर कोई एसिड डाल रहे हो, उसके बाद अगर उसमें जो आयंस रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, वो जितने ज़्यादा होंगे ना, जैसे मान लो H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है तो मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, अगर OH नेगेटिव ज़्यादा है तो उसका मतलब बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एल्कलीज। सो व्हाट आर एल्कलीज, मैंने आपको बताया कि बेसिस का काम होता है पानी में जाना और जाके OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करना, ठीक है। ये है बेसिस का काम, ओके। बट सी, नॉट ऑल बेसिस डिसॉल्व्स इन वाटर, ठीक है। देयर आर सम दैट वुड डिसॉल्व इन वाटर एंड देयर आर सम दैट वुड नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। The some who which dissolves in water are known as alkalis, ठीक है। और जो डिसॉल्व नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो बेसिस ही होते हैं, उनको कुछ नहीं बोलते, ठीक है। तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये इंजीनियर्स की फैमिली थी, ठीक है। इंजीनियर्स की फैमिली में से सारे बच्चे इंजीनियर्स नहीं बन सकते, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश ऑनर्स करने चले जाते हैं, ठीक है, या फिर लैंग्वेज कोर्स के लिए चले जाते हैं। एंड देयर आर सम हु फॉलो द ट्रेडिशन, ठीक है। जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं वो आपके ये रहे, ठीक है, दैट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। डिजॉल्व पानी में डिजॉल्व की एल्कलीज की फॉर्मेशन करते हैं और बाकी बेसिस होते हैं। तो देखो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एल्कलीज, जैसे आपने सेट्स पढ़ा होगा, तो दिस इज एल्कलीज एंड दीज आर बेसिस, ठीक है। तो एल्कलीज कम अंडर बेसिस, ठीक है। ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, ठीक है, बट दोज विच डिसॉल्व इन वाटर आर एल्कलीज, ठीक है। बट ऑल एल्कलीज आर बेस, ठीक है। सारे बेस देखो, सारे एल्कलीज देखो बेस के अंडर आते हैं, ठीक है। तो बेस की वो कैटेगरी जो पानी में डिसॉल्व होती है दैट इज नोन एज एल्कलीज एंड रेस्ट आर नोन एज बेसिस, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है।
ऐसे सॉरी एल्कलीज में और इसके बीच में डिफरेंस बहुत बार आता है। अब देखिए एक बात बताते हैं, हम चलते हैं डिल्यूशन के ऊपर। ठीक है, डिल्यूशन क्या होता है? दो तरह की चीज़ होती है। एक होती है कंसनट्रेटेड, ओके, एक होती है सॉरी आप समझ जाना कंसनट्रेटेड लिखा मैंने, ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज डाइल्यूटेड। देखिए कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि दैट हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ you could say any particular thing, ठीक है, दैट कुड बी कंसंट्रेटेड एसिड और कंसंट्रेटेड बेस, ठीक है। तो देखिए इसमें इस मटेरियल के अंदर मान लीजिए कंसंट्रेशन ज़्यादा था, जैसे देखिए आप सपोज करिए, आई वुड नॉट सजेस्ट यू दिस बट यू माइट हैव सीन अल्कोहलिक जो चीज़ें होती हैं उनके पीछे कंटेंट लिखा होता है कि दिस कंटेंट दिस मच ऑफ अल्कोहल, ठीक है, या फिर आप देख लीजिए कोई भी जो आपका मटेरियल होता है उसके अंदर आप देखिए पीछे कंटेंट लिखा होता है कि दिस कंटेन दिस मच परसेंटेज ऑफ शुगर, ठीक है। तो इफ इट कंटेन्स इफ देर आर टू मटेरियल्स, ठीक है, एक के अंदर 5% शुगर है एंड दूसरे के अंदर मान लीजिए 7% शुगर है, ठीक है, तो वट वी वुड से हम ये बोलेंगे कि ये जो सोल्यूशन है इसमें 7% शुगर है ना, इट इज मोर ऑफ शुगर कंटेंट, ठीक है, इसके अंदर शुगर कंटेंट ज्यादा है, मतलब वो कह सकते हो शुगर ज्यादा कंसेंट्रेटेड है इसके अंदर, ठीक है। तो वैसे ही एसिड्स और बेसिस में होता है, हम जनरली देखिए भी एसिड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एसिड था, कोई भी एसिड था, ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए 100 पार्ट्स थे एसिड के, या फिर आप कह सकते हो 100 H पॉजिटिव आयंस थे, ठीक है, बट हमें इतना ज़्यादा एसिडिक कंटेंट नहीं चाहिए, ठीक है, हमें इसको एसिड को यूज़ करना है किसी मटेरियल में। आप देखो आपके जैसे फिनाइल्स आते हैं इसके अंदर एसिड होता है, ठीक है, बट हमें अगर टोटल एसिडिक कंटेंट मिलेगा तो वो हमारे जो भी मटेरियल को डैमेज कर सकता है, हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम क्या करते हैं उसको, हम उसको डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, उसकी कंसंट्रेशन को कम करना, मतलब ये जो 100 पार्ट्स हैं या फिर 100 H पॉजिटिव आयंस हैं इसको हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। तो हाउ वी वुड रिड्यूस इट, रिडक्शन का एक ही तरीका होता है। पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये 100 ml वाटर था, ठीक है, इस 100 ml वाटर में सपोज कर लीजिए आपने मिलाया था 5 ग्राम शुगर, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कितनी भी स्वीटनेस थी, एक्स अमाउंट ऑफ स्वीटनेस थी। अगर मैं इसी पानी के अंदर 100 ml और ऐड कर दूं तो आई कुड एक्सपेक्ट कि इसकी स्वीटनेस डिक्रीज हो जाएगी, देयर आर हाई चांसेस, है ना, होगी डेफिनेटली इसकी स्वीटनेस डिक्रीज जाएगी, बिकॉज पहले क्या था कि ये जो 5 ग्राम शुगर थी, मतलब हर 1 ग्राम, अगर आप देखोगे 1 ग्राम कितने ml से अटैच था, 20 ml से अटैच था, ठीक है। अब ये टोटल हो गया 200 ml, ठीक है। अब ये 200 ml कितने पार्ट से डिवाइडेड हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 40 पार्ट से, ठीक है। तो मतलब अब 1 ग्राम ऑफ शुगर को ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी के अंदर अपने आप को मिक्स करना पड़ रहा है, ठीक है। अपनी जो मतलब आप कह सकते हो ना कि जो उसकी क्वालिटी थी, ठीक है, वो डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है, जो उसकी स्वीटनेस की क्वालिटी थी वो डिक्रीज हो चुकी है। सेम इन द केस ऑफ एसिड्स, ठीक है। इसको हम डाइल्यूट कैसे करते हैं, हम इसको ऐसे डाइल्यूट करते हैं कि एसिड्स के अंदर हम क्या करेंगे, एसिड्स के अंदर हम मिक्स करते हैं वाटर, ठीक है, ठीक है, उसकी क्वालिटी को डिक्रीज करने के लिए, मतलब एसिडिक कंटेंट को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। अब ये देखिए डिल्यूशन का तरीका होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डिल्यूशन आप कैसे करोगे, ठीक है। तो डिल्यूशन हम कैसे करते हैं, हम डिल्यूशन ऐसे करते हैं कि मान लीजिए ये आपका एसिड है, ये आपका वाटर है, ठीक है। अब बोलेगा कि दोनों में से आप बताओ कैसे डिल्यूशन करोगे, ठीक है। तो हम डिल्यूशन ऐसे करेंगे कि मान लीजिए आपको दो ऑप्शन दे देगा, या तो आप एसिड को पानी में मिलाओगे या पानी को आप एसिड में मिलाओगे, ठीक है। तो देखिए कभी भी याद रखिएगा कि एसिड के अंदर हम ना वाटर को ऐड नहीं करते, ठीक है। क्यों नहीं करते, क्योंकि एसिड धमाका कर सकते हैं, ठीक है, दैट वुड बी एन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और करते क्या हम ये करते हैं कि एसिड को ना पानी का जो बीकर होता है उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहते हैं धीरे धीरे, ठीक है,
ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहेंगे इस पानी के अंदर। जैसे ही हमें वो रिक्वायर्ड कंटेंट मिल जाएगा या फिर रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन मिल जाएगा, हम उसके अंदर वो डालना बंद कर देते हैं। ठीक है, एक बार ड्रॉप डालते रहेंगे और स्टीर करते रहेंगे। स्टीर मतलब उसको हिलाते रहेंगे। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट डिल्यूशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, देखिए हम मेजर कैसे करते हैं कि कौन सा कंटेंट कौन सा ज्यादा एसिडिक है। अब देखो मैंने आपको बोला कि H पॉजिटिव आइंस या OH नेगेटिव आइंस ज्यादा होंगे तो आपका वो कंटेंट ज्यादा एसिडिक या बेसिक होगा। ठीक है, बट आप काउंट तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो फॉर दिस वी हैव a strip that we call pH paper. So what is the use of pH paper? See, इसमें नंबरिंग होती है फ्रॉम 0 to 14। ठीक है, 0 से 14 का सेंटर पार्ट होता है 7। ठीक है, इसे हम कहते हैं न्यूट्रल। ठीक है, जनरली जो आपका प्लेन वाटर होता है ना, जो मतलब इसमें सॉल्ट कंटेंट नहीं होता, उसका पीएच आपको 7 मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, बट अभी जो आप घर पे पानी यूज़ करते हो, अगर आपके घर पे आरओ होगा तो यू माइट सी कि उसका जो कंटेंट है अबाउट 6.8 मिले आपको। ठीक है, दिस इज ऑफ द फैक्ट दैट उसमें आरओ के अंदर क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, उसको वो थोड़ा एसिडिक कर देता है। ठीक है, तो देखिए होता ये है कि 0 से लेके 7 तक आपका एसिडिक कंटेंट होता है। ठीक है, 0 से लेके जो 1 पे जो होगा ना आपका एसिड, ठीक है, जिसका pH 1 आएगा मतलब वो हाईली एसिडिक है। ठीक है, 2 पे कम, 3 पे और कम, 4 पे और कम, 7 पे आता है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब वो 7 से आगे चलेगा ना तो वो बेसिक होता जाएगा, मतलब 8 पे बेस, 9 पे ज़्यादा बेस, 10 पे ज़्यादा बेस। ठीक है, ऐसे करके इंक्रीज करता जाएगा। सो याद रखिएगा 1 पे एसिडिक, ठीक है, 2 पे थोड़ा कम एसिडिक, 7 से इस साइड को एसिड बढ़ते जाएंगे और इस साइड को बेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा एसिड होने का मतलब क्या है, ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस का रिलीज होना, और ज़्यादा बेसिक होने का मतलब क्या है, ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट pH paper. See, we will be discussing now practical use of pH in our daily life. तो देखिए pH होता है ना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी इन द सेंस किस लिए, ज़रूरी इसलिए होता है कि देखो वो हमारी बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। देखो जनरली क्या होता है कि कभी हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज के अंदर हम अपना वेस्ट को डंप करते रहते हैं, तो जो वेस्ट होता है ना, केमिकल वेस्ट है चाहे कैसे वेस्ट है, वो उसको एसिडिक बनाता है, तो दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक है, तो टू टेक केयर ऑफ our aquatic friends we used to pour or add some bases in that, तो ताकि जो एसिड इफेक्ट है वो नलीफाई हो पाए और वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, अब देखिए कभी कभार क्या होता है कि जब हम एग्रीकल्चर खेती करते हैं तो खेती करने से पहले हम क्या करते हैं, सॉइल का पीएच लेवल चेक करते हैं। अगर सॉइल हमारी बेसिक होती है ज़्यादा, ठीक है, तो हम उसके अंदर एसिड्स यूज़ करते हैं लाइक फर्टिलाइजर्स। ठीक है, और अगर हमारी सॉइल अगर ज़्यादा एसिडिक होती है तो हम उसमें यूज़ करते हैं बेसिस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर एसिडिक ज़्यादा तो बेसिस यूज़ करोगे और बेसिक ज़्यादा तो एसिड्स यूज़ करोगे। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि हमारे स्टमक के अंदर HCl एसिड होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ दैट एसिडिक HCl। ठीक है, HCl आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, आपका जो फूड कंटेंट है उसको इजीली ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि जब आप ज़्यादा ऐसी चीज़ खा लेते हो उसके अंदर पहले से एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दैट हेल्प्स इन राइज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब राइज हो जाता है ना तो समटाइम इट हैपेंस, ये आपका स्टमक है, ये आपका यूसोफेगस है। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर तक आता है तो आपको क्या आता है, वहाँ से खट्टी डकारें आती हैं, सुना होगा आपने। ठीक है, तो इन दैट केस वी आर रिकमेंडेड दैट वी शुड यूज अ बेसिक कंटेंट, मतलब इनो सुना होगा आपने, इनो हो जाता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कंटेंट होता है उसके अंदर। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, दैट इज बेसिक इन नेचर, तो वो हमें दिया जाता है। एंटासिड्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी हेल्प करते हैं आपको बेसिक कंटेंट ऐड करने में। ठीक है, टूथ डिके का पार्ट देखो, जो हमारा टूथ डिके, अब हमारे जो माउथ है ना उसका पीएच 5.5 से नीचे होता है। ठीक है, टूथ इनेबल किसका बना होता है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, ये होता क्या है, ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट को क्रिस्टलाइज करा दीजिए। ठीक है, वहां से आपको फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। ठीक है, तो याद रखिएगा दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। ठीक है, इट इज नॉट डिसॉल्व इन वाटर,
पानी में डिजोल्व नहीं करता। तो देखो जो चीज पानी में डिजोल्व नहीं करती और जो हार्ड होती है, जैसे मान लीजिए आयरन है, ठीक है, उसको अगर आप ज्यादा हार्ड है तो आप उसको एसिडिक कंटेंट में डाल दीजिए, वहां पर मेल्ट हो सकती है, ठीक है, मतलब करोड़ हो जाएगी, एक्चुअली मेल्ट नहीं, ठीक है, करोड़ मतलब सड़ना खराब होना, ठीक है। तो जब हमारे माउथ के अंदर खाना पीना रहता है ना, हमारे माउथ के अंदर नेचुरली एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स कह लीजिए, बैक्टीरिया कह लीजिए, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है रिलीज करना, किसका रिलीज करना, हमारे माउथ के अंदर एसिड्स का रिलीज करना, ठीक है। तो देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं ना, दैट फीड ऑन शुगर मेजरली, ठीक है, जब उनको खाने को शुगर मिलता है या फिर खाना फंसा रहता है आपके टीथ्स में, तो वो क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं और उसको यूज करके एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। तो देखिए उससे क्या होता है कि जो हमारा टूथ एनिमल वीक होता है, ठीक है, हमारे गम्स उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो टू टैकल दिस प्रॉब्लम्स वी यूज टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो हमारे माउथ के अंदर एसिड रिलीज हुआ है उसके इफेक्ट को खत्म करते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए जो घर पे हम सॉल्ट यूज करते हैं उसका नाम याद रखिएगा, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो कॉमन सॉल्ट रहती है हमारी, ठीक है। अब ये जो कॉमन सॉल्ट है ना, इससे हम बहुत सारी चीजें फॉर्म कर सकते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब चैप्टर को ना ध्यान से समझते रहेगा, देखते रहेगा, ठीक है, और लास्ट में आज हम प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, और आपको ट्राई करना है कि चैप्टर को फिर से देखने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए आप ध्यान से समझते चलिएगा चैप्टर को, ठीक है। तो दिस वुड हेल्प यू लेटर इन दिस क्लास। तो देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, इसको जब हम पानी में मिक्स करते हैं ना, ठीक है, पानी को समझते हैं आप, पानी को हम एक्वा भी कहते हैं, तो जब इसका हम एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, NaCl का जब हम एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे ब्राइन भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो NaCl का यहाँ देखिए गिवन है, NaCl का जो एक्वा सोल्यूशन होता है उसे हम ब्राइन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो सोल्यूशन है जब पानी में जाता है ना, तो ये डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज मतलब टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्म करता है वहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस H2, ठीक है। दिस रिएक्शन इज वेरी यूजफुल इंडस्ट्रियल के इंडस्ट्रीज के हिसाब से, बिकॉज इसको हम प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं, किसकी प्यूरिफिकेशन में, जब हमें Cl और NaOH निकालना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालना होता है ना, तब उस केस में इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं, हम सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर मिक्स करते हैं, वहां से हमें सोडियम मिल जाता है अलग, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, हाइड्रोक्साइड आर जनरली गैसेस इन नेचर, ठीक है, तो उसको हम गैसेस को लिक्विफाई कर देते हैं, ठीक है, और हमारे पास सोडियम बचता है, ठीक है। Cl मिल जाता है, क्लोरीन का चाहिए होता है, क्लोरीन भी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे आपके आपके आरओज होते हैं उसके अंदर क्लोरीन का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मार्क दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन है इसके ऊपर, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। तो देखिए इसकी फॉर्मेशन होती कैसे है, इसकी फॉर्मेशन होती ऐसे है कि जब हम, जो हमारा ब्राइन था, सोडियम क्लोराइड था, ठीक है, उसको पानी में डाला, आपने पानी में डाल के उसको इलेक्ट्रोलिसिस किया, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि आपने दो रॉड्स ली, एक कैथोड ली, एक एनोड ली, ठीक है। जनरली आपकी कैथोड नेगेटिव होती है और एनोड आपको पॉजिटिव होता है, ठीक है। एनोड आपका जनरली इम्प्योर इम्प्योर सॉल्ट होता है जो आपको चाहिए होता है, जिसको आपको प्योर करना होता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपको सोडियम क्लोराइड है, इसमें आपको सोडियम चाहिए अलग, तो इसमें आप इम्प्योरिटीज रखेंगे उसकी, मतलब कि एनोड आपका सोडियम क्लोराइड का बनेगा, ठीक है। फिर जब आप इसको इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव है, ठीक है, तो सोडियम चला जाएगा कैथोड के ऊपर, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, और जो नेगेटिव था मतलब क्लोरीन था वो जनरली तो पानी मिक्स हो जाएगा या फिर इसी पे रह जाएगा, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, तो वहां से आपको क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, ठीक है। इसको और कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो आप, आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसे हमको और क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम भी बोलते हैं, याद रखिएगा स्लेक लाइम, ये नाम याद रखिएगा। ब्राइन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, और स्लेक लाइम क्या होता है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब आप इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपका फॉर्मेशन होती है CaOCl2, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब देख इसका यूज क्या क्या होता है, बहुत यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर का। एक तो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यूज होता है, जनरली आपको जब आपका लिनन गंदा होता है आप उसको वाइट करना होता है सारा, ठीक है, जैसे आपको पेपर्स हैं उनको भी वाइट करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। ब्लीच क्या करता है, कलर्स को उड़ा देता है सारे को, ठीक है।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, पानी को क्लीनिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है, आपको वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स बनाने में भी आपकी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा घर में सब यूज करते होंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन होती कैसे है, दिस बेकिंग सोडा, ठीक है, दिस इज ऑफ योर प्रैक्टिकल यूज फॉर एग्जाम्स, ठीक है, कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है और इसका इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अलावा इसके और प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कि ये एक तो नॉन कोरोसिव बेकिंग सॉल्ट बेसिक सॉल्ट है। तो देखिए नॉन कोरोसिव का मतलब क्या होता है, जो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, ठीक है, मतलब कि एक तो जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है, और उसको हम प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यूजेस क्या क्या, तो आपको पता है कि फूड मटेरियल्स में यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके जो भी ऐसे आइटम्स है जो आपके सॉइल के रहते हैं, मतलब फ्लफी होते हैं, जैसे भटूरा हो गया, ठीक है, एंड साथ में डो हो गया इसका, ब्रेड्स का, ठीक है, पूड़ी का डो हो गया, तो इन सब में हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। इसको देखो एंटासिड्स के अंदर भी यूज करते हैं, उसका भी ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस बेसिक प्रॉपर्टी इट इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड, ठीक है। इसको देखिए यहाँ भी यूज करते हैं, सोडा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज आज ये प्रीवियस क्वेश्चन, इसको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में समझाऊंगा। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है, दिस इज मतलब आप समझिए ध्यान से, Na2CO3 दिस इज वॉशिंग सोडा, एंड .10H2O मतलब क्या है कि एक सोडियम सॉरी वॉशिंग सोडा का जो मॉलिक्यूल है वो कंबाइन करता है 10 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, जब ये एक 10 का कंबाइन करता है तब ये फॉर्म करता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। मतलब कि अगर आपका वॉशिंग सोडा है उसका हर एक मॉलिक्यूल 10 वाटर के मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा, अगर नहीं कर रहा तो वो वॉशिंग सोडा नहीं है, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होती है, सोडियम कार्बोनेट को जब पानी से रिएक्ट करते हैं 10 मॉलिक्यूल पानी के से, तो Na2CO3.10H2 वो रिलीज करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसे हम हाइड्रेटेड भी कहते हैं, याद रखिए, अगर एग्जाम में बोलते हैं ना कि हाइड्रेटेड सोल्यूशन ऑफ Na2CO3, तो उसका मतलब समझिए कि वो वॉशिंग सोडा की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा हाइड्रेटेड नहीं होता, अगर उसको आप हाइड्रेट कर दोगे तो हो सकता है चांसेस है कि वो जल्दी रिएक्ट कर दे पानी ऑक्सीजन के साथ और वहाँ पे आपको ऑक्साइड्स बना के दे दे, ठीक है। वॉशिंग सोडा का देखिए यूज कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहले इसको हम ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स, बोरेक्स के यूज मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, आपको पता है वॉशिंग सोडा आपके जितने भी वो होते हैं आपके क्या कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ, डिटर्जेंट्स, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है। उसके अलावा इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस से आप क्या समझते हो, लास्ट चैप्टर में शायद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, नहीं किया था अभी बताता हूँ। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स, ठीक है। मैग्नीशियम की और कैल्शियम की सॉल्ट्स की वजह से आपकी पानी के अंदर हार्डनेस आती है। हार्डनेस का मतलब देखिए जनरली क्या होता है, हार्डनेस के अंदर मतलब कुछ नहीं होता है कि जब सॉल्ट्स होती है ना, मैग्नीशियम और कैल्शियम की सॉल्ट्स होती है, जब पानी मिक्स कराती है ना तो वो पानी को खारा बनाती है, आपने सुना होगा हिंदी में। तो मैं आपको बहुत लेमन्स लैंग्वेज बता रहा हूँ कि जब पानी खारा होता है, जब हम बोलते हैं पानी खारा होगा तो इसका मतलब क्या है, दैट इज वी हैव कंटेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इनसाइड इट, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट्स जनरली इसके और इसके, ठीक है, ओनली कार्बोनेट्स नहीं बाइकार्बोनेट का। बाइकार्बोनेट मैंने आपको बताया था, कार्बोनेट इज CO3 and bicarbonate is HCO3. तो bicarbonates are the major cause for temporary hardness of water, ठीक है। तो ये इसको भी रिमूव करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए उसके बाद आगे चलते हैं हम। देखिए जो भी आपका कैल्शियम से रिलेटेड मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो तीन फॉर्म एग्जिस्ट करता है, या तो सेमी हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट, ठीक है, या फिर अनहाइड्रस, मतलब कि जिसके अंदर पानी का कंटेंट ना हो। हाइड्रेट मतलब जिसमें पानी का कंटेंट है। तो देखिए जब आपका कैल्शियम सल्फेट CSFO मतलब कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, इसके साथ आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, आप इसको ये भी कह सकते हो कि आधा मॉलिक्यूल हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि दो CSFO एंड 1H2O, ठीक है, मतलब मैंने सीधे सीधे उसको डबल कर दिया, बट बाकी आप ये इससे भी समझ सकते हो कि ये जो 2 होता है ना ये एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CSFO कंबाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O
इट फॉर्म्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा कॉमन सब्सटेंस है, जनरली फ्रैक्चर्ड बोन्स को राइट करने में ठीक होता है, यूज़ किया जाता है। इसको हम बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होती है, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं ना, जिप्सम को हीट करते हैं तो हीट करने का मतलब क्या है, इसके अंदर पहले से पानी का कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है, पानी का कंटेंट ज़्यादा था, पानी का कंटेंट आपने निकाल दिया, निकाल के क्या बन गया, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। ठीक है, तो जिप्सम के अंदर क्या होता है, जिप्सम के अंदर देखिए CSFO.2H2O, मतलब उसके अंदर पानी के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमने देखा भी कि जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस उसमें कितने मॉलिक्यूल्स, हाफ हाफ मॉलिक्यूल, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल टोटल थे, आपने उसमें से कितने निकाल दिए, 1.5 मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए हीट करके, और आपका क्या फॉर्मेशन होगी, आपकी फॉर्मेशन होगी किसकी, जिप्सम की। ठीक है, याद रखिएगा जिप्सम आपका हाइड्रस होता है, इसके अंदर ज्यादा पानी कंटेंट होता है। ठीक है, अगर आप इसको हीट कर दो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन करता है। जिप्सम आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है सीमेंट इंडस्ट्री में। ठीक है, याद रखिएगा सीमेंट इंडस्ट्री में जिप्सम को यूज किया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता है कि जनरली बोन्स में आपके प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो उसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी ऑक्सीजन की और पानी की पहुंच में आते ही हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर, so we'll be discussing previous year question right now. ठीक है, तो stay focused, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वो फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, which one of the following acids is produced in human stomach। ठीक है, पढ़ा था हमने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब हद से ज़्यादा सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको। बहुतों को तो आंसर पता भी लग भी गया होगा अभी तक। ठीक है, यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक। सो हियर इट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो कौन सा एसिड है बॉडी के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स कॉजेज हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए अभी पढ़ा था हमने, 2 मिनट भी नहीं शायद मेरे ख्याल से, कौन सा सॉल्ट हार्डनेस क्रिएट करता है पानी के अंदर। तो अभी हमने पढ़ा था ये यहाँ पर है आपका, ये रहा। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर कहाँ से आती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम की बाइकार्बोनेट से। ठीक है, परमानेंट आती कार्बोनेट से और टेम्परेरी जनरली बाइकार्बोनेट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी हार्डनेस की बात कर रहे हैं आप, ये देखिए पहले। ठीक है, जनरल हार्डनेस की बात कर रहे हैं, तो जनरल हार्डनेस जब भी आपको बोलता है कि जनरल हार्डनेस बोल रहा है तो टेम्परेरी हार्डनेस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम आपको वैसे ही कैंसिल आउट हो गया बिकॉज कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों की सॉल्ट हार्डनेस करती है और किसी की नहीं करती। कैल्शियम के यहाँ पे 2 सॉल्ट्स हैं, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। तो मैंने आपको बताया बाइकार्बोनेट इज अ मेजर इंग्रेडिएंट इन हार्डनेस ऑफ वाटर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। CAP 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। CDS 2018 का क्वेश्चन था which one of the following gases dissolves in water to give acidic solution। देखिए ये भी सब अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी करा है तो सबका बेड़ा पार है, नहीं करा तो थोड़ी मुश्किल है। ठीक है, जितनी भी आपकी सोर्स बुक बनती है दैट ऑल आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ज़्यादा एक्यूरेट कोई बुक नहीं है। लेट मी जस्ट चेक वेयर इट इज, बट ये रहा। देखिए आपकी कौन सी सॉल्ट है जो कि आपके पानी के अंदर डिजोल्व होती है और उसको एसिडिक कंटेंट देती है। देखिए मैं आपको यहाँ से भी बता दूंगा ना, आपको दिक्कत होगी नहीं। पानी के अंदर ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर अस। ठीक है, अगर वो एसिडिक होता तो आप वैसे ही हम लोग मर जाते। ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी एसिडिक नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि नाइट्रोजन एटमोसफेयर में 78% प्रेजेंट है। अगर वो करती होती तो अभी तक जो बंदे स्विमिंग मतलब रिवर्स में लेक्स में जाते स्विमिंग के लिए वो अभी तक मर चुके थे। हाइड्रोजन भी नहीं होगी क्योंकि हाइड्रोजन के बिना पानी फॉर्म नहीं होता। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि अगर ये होते तो ये तो पानी के एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ठीक है, बच्चा कौन सा ऑप्शन आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। फोर्थ, the paste of white material in water used to maintain fractured bone fixed in place. This white material is used is called plaster of Paris आंसर है, बहुत सिंपल है। व्हाइट पेस्ट कौन सा है जो आपका यूज किया जाता है बोन्स को ठीक करने के लिए, मतलब अगर बोन्स ब्रेक हो जाए तो यूज किया जाता है। ठीक है, आंसर इसका ये भी ये मिल जाएगा, सब अपने एनसीईआरटी में ही है, हम सबकी प्यारी एनसीईआरटी। So let's check it here. Where is here?
The substance is doctor used as plaster for supporting fracture bone in the right position. This is plaster Paris. Okay. Next question. In paper manufacturing industry, degumming of the raw material is done using. देखो पेपर मटेरियल डीगमिंग का मतलब क्या है? पेपर की क्लियरेंस, मतलब कि पेपर को ऑफ वाइट करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? देखो ये भी हमने पढ़ा था कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर भैया जी हैं वो यूज करते हैं हम लोग। देखिए इसको यूज किया जाता है पेपर फैक्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर। ये भी देखिए डायरेक्ट आंसर यहाँ से आ गया। तो यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस उसका फॉर्मूला, ठीक है, ये आपके पेपर से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो मैं आपको हर बार गाइड करता हूँ कि ये पढ़िए ये मत पढ़िए। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दैट इज अराउंड 80% ऑफ द सिलेबस फॉर साइंस, ठीक है। अब देखिए सबके फॉर्मूलेज आ चुके हैं। जिस बच्चे ने ढंग से ध्यान से पढ़ा था सबको फॉर्मूले याद होंगे। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या था? CaOCl2। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था? NaCO3। वॉशिंग सोडा का Na2CO3.10। मैंने बताया था अगर आप NO2CO3 में पानी मिला दो, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा बन जाएगा, ठीक है। कभी भी वो बिना पानी के एग्जिस्ट नहीं करता। स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या है? CaOH2, ठीक है। सारे फॉर्मूले यहाँ पे गिवन है हमारे, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं जो गिवन ना हो। बेकिंग सोडा NaCO3, वॉशिंग सोडा ये देखिए Na2CO3.10। देखो दोनों को याद कैसे रखना है? याद रखिए कि हमारे NaCO3 दोनों में देखिए किसका फर्क है? दोनों में फर्क है H का एक, ठीक है, ठीक है। तो देखिए याद ऐसे रखिए कि जो H है, H का मतलब रख लीजिए आप होम, ठीक है। तो घर में कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं? बेकिंग सोडा, मतलब घर में किचन में बनाने के लिए तो बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा में NaCO3 आ जाएगा और Na2CO3 अगर पानी लगा हुआ है .10:2 लगा हुआ है तो वो वॉशिंग सोडा है, ठीक है, क्योंकि वॉशिंग सोडा क्लीनिंग में हेल्प करता है तो पानी के साथ कंबाइन करता है हमेशा, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूले याद कराए थे। ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम का CaOH2, ठीक है। सारे फॉर्मूले यहीं से हो गए, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं बन सकता। ब्लीचिंग पाउडर पानी में ऐड किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। मैंने बताया था ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं हम और उसके अंदर क्लोरीन ऐड करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज अ डिसइंफेक्टेंट, ये भी हमने पढ़ा था। मैं आपको देखो बार बार दिखा रहा हूँ बट आई एक्सपेक्ट कि आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स ब्लीचिंग पाउडर का यूज है। अब देखिए डोलोमाइट पाउडर। डोलोमाइट पाउडर क्या होता है? डोलोमाइट पाउडर एक्चुअली कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स का होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिए डोलोमाइट पाउडर। दिस इज नॉट इन योर एनसीईआरटी बट इट इज रिलेटेड टू द टॉपिक दैट वी हैव स्टडीड टुडे। डोलोमाइट पाउडर इज अप्लाइड इन सम एग्रीकल्चर लैंड। द पर्पस ऑफ अप्लाइंग इट इज, तो देखो इसको हम अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं? इसको इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हमारे सॉइल का जो पीएच है वो कम हो पाए ज़्यादा हो पाए। देखिए जब हमारे सॉल्ट एसिडिक है, ठीक है, हमने देखो पीएच पेपर पढ़ा था, भूलना नहीं है बस, कुछ भी कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट से याद है तो वी कैन अचीव एवरीथिंग, ठीक है। दिस इज पीएच, ठीक है। इस साइड एसिडिक, इस साइड बेसिक, ठीक है। अगर वो एसिडिक है इस तरफ को, ठीक है, तो मुझे इसका पीएच कंटेंट कम करना है तो मैं क्या करूंगा? इसमें बेसिक कंटेंट यूज करूंगा, ठीक है। तो डोलोमाइट पाउडर डालूंगा ताकि उसका क्या हो जाए? अभी देखिए ये इसका एसिडिक कंटेंट इधर ज्यादा है इधर कम है, ठीक है। तो मुझे अगर पीएच इंक्रीज करना है मतलब बेसिक की तरफ जाऊंगा मैं, मतलब मुझे अगर बेसिक करना है तो पीएच इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर एसिडिक करना है तो पीएच डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मुझे पीएच इंक्रीज करना है ताकि मेरा कंटेंट बेसिक हो पाए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन होगा टू इंक्रीज द पीएच ऑफ द सॉइल। तो ये आंसर है आपका यहाँ से। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स कॉज हॉटनेस टू वाटर। ये तो क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था। So here it is. We have completed all our questions. So for any queries, you can contact me. This is my Telegram handle Ankit_1001, ठीक है। और क्लासेस अपनी और अच्छी होंगी, एक्सटेंसिव होंगी, ठीक है। क्लासेस लंबी होती है तो उससे डरिए मत, क्योंकि कंसेप्ट्स आपको लाइफ टाइम यूज करने हैं। ऐसा नहीं है कि बार बार चीज़ें पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। हाँ बार बार पढ़ना रिविजन जरूरी है बट कंसेप्ट आपको एक बार में क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। तो अच्छे कंसेप्ट के लिए टाइम तो लगता ही है। बिसाइड दैट हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, मिशन CP4। अभी देखिए रिजल्टेड इंडिया का एग्जाम होता है 2021 का, उसके अंदर 10 करंट अफेयर आई थी, 10 में से 9 हमारी सी करंट अफेयर्स मैगजीन में से थी। तो मतलब दिस इज अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट फॉर आवर टीम। मतलब 90% एक्यूरेसी देना इन यूपीएससी, बता के बोल देना कि हमारी मैगजीन से आएगा, वो भी 25 पेज की मैगजीन से, बहुत बड़ी बात होती है। अदर कॉम्पिटिटर्स जो विजन आई जैसे 100 पेज की मैगजीन देते हैं वो भी पूरी की पूरी करंट अफेयर उसमें नहीं कर पाते, ठीक है। उसके अलावा देखिए फ्री कंटेंट तो मिलता रहता है हमारे चैनल पर, ध्यान से आप देखिएगा तो ये रहा आपका, जैसे हमने करंट अफेयर दी भी, ठीक है। तो
आई वुड सजेस्ट यू दैट यू शुड इनरोल फॉर एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, क्योंकि आप एनसीईआरटी इतना ध्यान से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी मोटिवेशन है जो कि ज़रूरी है बच्चों के लिए, ठीक है। साथ ही साथ हमने देखी फ्री में आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कर दी गई, ठीक है, जो रिलेटेड है इससे, ठीक है। इसके अलावा देखिए टेस्ट सीरीज के लिए मैं आपको बोलूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा आपको इनरोल करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, स्वप्निल से भी कर सकते हो, और ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल, एंड हमें पता लग जाएगा दैट यू आर वेरी रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स आवर चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू।